This is Chandan and I welcome to you my channel, The Learning Field. Okay, so this is the session 7 of So this is the session 7 of 100 question practice PDE series, which we have already started, and we have covered 6 lectures on this 100 question practice PDE series, and we have solved already 70 questions. Okay, so in this session we are starting from question number 71 and onwards. So those who are not watching the previous lectures, I will share the link in the description and also here in the I tab. Okay, so you can check for your reference, and this session is very helpful for CSIR NET, upcoming CSIR NET and GATE exams. So you can watch for your practice session. Okay, and one more request is that those who are new in my channel, please like the video, comment if you have any doubt in the comment section below, and subscribe the channel. Okay, so question number 71, the first questions of today is says that let uxt be the solution of del 2u del t2 minus del 2u del x2. This is equal to xt minus infinity less x less infinity and t greater than 0, ux0 equal to del u del t x0. This is equal to 0, where this is the range. Then the value of u2 3 equal to, here this is a wave equation. Okay, this is a clearly wave equation with a non-homogeneous term. Okay, so we apply here the D'Alembert solution. We can apply here the Laplace transform to solve this problem. In this problem we apply D'Alembert solution. Okay, you can also apply Laplace transform, there is no problem. Okay, so देखो first जो है the equation of standard wave equation is of the form utt, this is equal to c square uxx plus fxt. This is the non-homogeneous term. Okay, so where in the initial conditions are ux0 equal to fx and ut(x0) equal to gx, suppose. Then the D'Alembert solution, this is equal to uxt equal to half of f of x plus ct. This is the function f of x plus ct plus f of x minus ct plus 1 by 2c integration x minus ct to x plus ct gs ds. This function is the gx ut(x0) function. Okay, plus 2c 1 by 2c into integration 0 to t x minus c into t minus theta to x plus c into t minus theta f of this. I just write this function as another variable. Okay, so f s theta ds d theta. Okay, so here the ux0 means fx is also 0 and gx means utx0, this is also 0. Therefore here the only term should remaining is this term. Okay, this non-homogeneous term. Other two terms of the solution are 0. Okay, so let's see the solution uxt. This is equal to 1 by 2c means, and value of c means here 1, so 1 by 2 into integration 0 to t integration x minus t minus theta to x plus t plus minus theta into f s theta means f xt means xt. Okay, so f s theta means s into theta ds and d theta. Okay, so now we have to find the value of u23. Okay, now we put the value of x equal to 2 and t equal to 3. For our calculation is to be easy, so u23 direct we have calculate u23. Okay, this is equal to 1 by 2 integration 0 to t means 3, so 0 to 3 integration x means 2, so 2 minus 3 minus theta is equal to 2 plus 3 plus theta into s theta ds d theta. Okay, so this is equal to clearly 1 by 2 integration 0 to 3 minus 1 minus theta to 5 plus theta into s theta ds d theta. Okay, so first we have calculate we have integrate with respect to ds. Okay, so 1 by 2 into integration 0 to 3 s means here s square by 2 and the limit should be minus 1 minus theta to 5 plus theta into theta d theta. So okay, this is equal to half integration 0 to 3 into 1 by 2. Here we can take this outside the integration since this is a constant, these two. Okay, so 1 by 4 into s square means 5 plus theta whole square minus 1 minus theta whole square. Okay, into theta d theta. Okay, so this is equal to, we can write 1 by 4 integration 0 to 3 into 5 plus theta means 25 plus theta square plus 10 theta
minus theta square minus 1 minus of 2 theta into theta d theta. Okay, so this is equal to, we can write 1 by 4 integration 0 to 3 theta square cancel, and 24 here 24 my plus 8 theta into theta d theta. So this is equal to simply 1 by 4 into 24 into theta means integration 24 theta square by 2 plus 8 theta square means 8 theta cube by 3 integration 0 to 3. So this is equal to 1 by 4 into 24 into 2 means 12 into theta square means 3 3 is a this is 9 plus 8 into by 3 into 3 cube means 27 and 0 should be 0. So this is equal to 9 hoga. So this is equal to 1 by 4 into 12 9 108 108. This should be plus or minus, just a minute. 12 into 3 means 9 means 108 plus 72. Okay, I think this should be minus. Okay, just a minute 10 theta. Oh sorry, this limit 3 minus theta होगा ना, ये यहाँ पर ये माइनस होगा, just a minute, minus theta. So this is minus theta. Okay, so 5 minus theta whole square, this is minus. Okay, this is the minus and this is also minus. Okay, 5 minus theta, so this is equal to theta square, this should be minus. Okay, so this should be minus 8 theta, minus 8 theta, this should be plus 2 theta. Okay, since this is minus theta minus plus 2 theta. Okay, plus 2 theta, just a minute, this should be minus 8 theta minus 8 theta cube by 3. This is also minus. Okay, this is also minus. So this is equal to 1 by 4 into 36, which is equal to 9. Okay, so the answer is, the correct answer is here option A, 9. Okay, now go to the next question, question number 72. 72 is, let U be the unique solution of del U del T. This is clearly a heat equation. This is equal to del 2 del x to xt belongs to 0 1 cross 0 infinity. That means x belongs to 0 1 and t belongs to 0 infinity. Okay, and u x0 equal to sin pi x, x belongs to 0 1, u ut u0 to equal to u1 to equal to 0, t belongs to 0 infinity. Then which are true? Here 4 options are given. Okay, so देखो यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर अप्लाई करेंगे लैपलास इक्वेशन. ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म. ओके, लैपलास ट्रांसफॉर्म. So apply Laplace transform, and one more thing is that Laplace of del u del t, this is equal to s u bar. Okay, and Laplace of del 2u del t2, this means s u bar minus u x0. क्लियर, s u0. ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पर मेनली वी नीड दिस टू ओनली, and L of, since here we apply Laplace with respect to t. Okay, and L of del 2u del x2, this is equal to simple d2u bar dx2. Okay, this is the concept here. Now we apply Laplace transform to del u del t, this is equal to del 2u del x2. Okay, so if we apply Laplace transform, then we get Laplace of del u del t, this is equal to Laplace of del 2u del x2. Okay, now LU del of del u del t means what? L of del u del t means, just a minute, sorry, here this is s u bar minus u
x0 and this means s square u bar minus s u x0 minus ut x0. Okay, these are the mistakes, sorry. So del t2 means what? This means s u bar minus u bar is the Laplace transform of u. Okay, u bar means is equal to Laplace of u xt. Okay, this is equal to u of s, sorry, xs. Okay, u bar means u bar is a function of u bar oh, just a minute. This u bar is a function of x and s. Okay, this is equal to Laplace of L of xt. Okay, this, so s u bar minus u x0, this is equal to d2 u bar, and here we only need the particular integral. Okay, we don't need the complementary function. Okay, d2 u bar dx2. So this implies d2 u bar dx2 minus s u bar. U bar here is the dependent variable. So this is equal to minus of u x0 means what? A value of u x0 given here, which is equal to sin pi x. Okay, so this is equal to minus of sin pi x. Okay, now u bar xs, this is equal to 1 by, this is d square minus s. Here d stands for what? d dx2, d2 dx2, d square minus x of minus of sin pi x. Okay, now this is equal to minus sin pi x by d square should be replaced by minus of pi square minus s. This is equal to minus cancel, sin pi x by pi square plus s. Okay, this is the u bar term. Now we apply inverse Laplace transform. So applying inverse Laplace, what? Laplace inverse of u bar xs, this is equal to Laplace inverse of sin pi x by pi square plus s. Okay, now this is equal to simply u xt again back. This is equal to Laplace inverse sin, we apply Laplace inverse on the variable x, t, and this is the inverse term. So sin pi x जो होगा वो बाहर आ जाएगा simply, and Laplace inverse of this term, this means Laplace inverse of 1 by pi square plus x, and this is equal to sin, we all know that this is equal to sin pi x into e to the power, जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे विद माइनस साइन होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, pi square into t होगा, क्योंकि this is the variable in which we apply the Laplace transform. Okay, so this is the solution. That means u xt, this is equal to sin pi x into e to the power minus of pi square t. Okay, this is the solution. Now we go to the options. Okay, the options one says that there exists xt belongs to 0 1 and x belongs to, this means x belongs to this and this belongs to this interval such that u xt equal to 0. But देखो, for x belongs to 0 1 and t belongs to 0 infinity. Okay, देखो x belongs to 0 1 मतलब ये जो sin pi x है, ये sin pi x 0 1 में कभी भी 0 नहीं बनेगा. x इंटीजर होगा तब ये 0 होता, बट यहाँ पे x तो कोई इंटीजर नहीं है 0 1 के बीच में. ठीक है, तो ये 0 नहीं बनेगा, एंड ये टर्म तो कभी भी 0 नहीं बनेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ t. ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू नॉन जीरो, मतलब ये पूरा के पूरा u x t ये नॉन जीरो होगा, मतलब ऑप्शन ए जो है फॉल्स. ठीक है, ऑप्शन बी में आते हैं. ऑप्शन बी क्या है? देयर एग्जिस्ट एक्स टी बिलोंग्स टू दिस del u del t, this is equal to 0. Now if we find del u del t, okay, so b option del u del t, this is equal to क्या होगा? माइनस साइन पाई एक्स तो एज इट इज रहेगा एंड माइनस पाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर टी. ओके, ये वैल्यू, ये भी तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी इंटरवल जो है बी ऑप्शन में यही बोला है 0 1 एंड 0 इनफिनिटी, तो इसके लिए भी कभी ये तो 0 नहीं बनेगा. ठीक है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स है. ठीक है, नेक्स्ट जो है
ऑप्शन नंबर सी देखो, e to the power t into uxt is bounded for xt belongs to this. Okay, same. So c means e to the power t, so e to the power t into uxt, this is equal to देखो sin pi x into देखो e to the power t into e to the power minus pi square t. Okay, so this is equal to sin pi x into e to the power t into 1 minus pi square. Okay, तो देखो e to the power t into 1 minus pi square मीन्स यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, जस्ट मिनट, यहाँ से माइनस टी कॉमन लो, ठीक है, माइनस टी इंटू क्या होगा, माइनस टी इंटू पाई स्क्वायर माइनस 1, and this pi square minus 1 should be greater than 0, that means e to the power minus t is less than 0. This is equal to sin pi x, we can write into 1 by e to the power t into pi square minus 1, and this term always greater than 0, and 1 by m मतलब 1 by this term e to the power t into pi square minus 1, this is always less than 1 होगा, ठीक है। एंड साइन का वैल्यू जो होगा x बिलोंग्स टू सेम इंटरवल बोला है 0 1 एंड t बिलोंग्स टू 0 इन्फिनिटी, ठीक है। 0 इन्फिनिटी के लिए ये तो ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा एंड ये भी लेस देन 1 होगा, मतलब ये फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में बोला है ये ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 तो कभी नहीं बनेगा, सी से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी फॉल्स, देयरफॉर यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस क्वेश्चन कम्स इन CSIR NET June 2019. Okay, now question number 73. Question number 73 says that the solution of the initial value problem utt is equal to 4uxx is equal to satisfy the conditions this or utx0 equal to this. Okay, so the question given that ut, just a minute, देखो जस्ट मिनट, यहाँ पर एक बार देख लो, ठीक है। देखो ut जो है ut इज इक्वल टू 4uxx, मतलब c का वैल्यू क्या है utt, ओरिजिनल इक्वेशन था c स्क्वायर uxx, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नॉन होमोजेनियस टर्म नहीं है, सीधा सीधा यह तो सीधा सीधा प्रॉब्लम है। एंड ux0 इज इक्वल टू x, दैट मीन्स fx इक्वल टू x गिवन। नाउ इफ वी अप्लाई सिंपल प्रॉब्लम है, utx0 का वैल्यू 0 है, मतलब वो तो जो राइट वाला दो टर्म था डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन में वो तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ सिंपली जो यहाँ से सॉल्यूशन आएगा, देखो uxt डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है यहाँ पर 2, तो x प्लस 2t इंटू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2t. ओके, so this is equal to 1/2 into f of x plus 2t means simple value x, that means x plus 2t plus x minus 2t होगा simple, so 2t cancel, this is equal to 1/2 into 2x, so this is equal to simple x. Okay, so this is a simple problem, so x is the clear cut answer. Okay, now go to the next question. Question number 74. Okay, question number 74 is again a wave equation. Okay, देखो यहाँ पे ये जो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं डेडिकेट किया हूँ कि लैग्रेंज मतलब वेव इक्वेशन एंड हीट इक्वेशन, एंड कोई एक और दो एक दो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, देख लो। सो uxt, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम del u del t2 माइनस del t u del x2 is equal to 0, ux0 equal to sin x and del u del t x0 this is equal to 1, then the value of u pi and pi by 2 equals to, देखो तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जस्ट मिनट, नाउ अप्लाई करो लैपलास, ठीक है। तो लैपलास ऑफ अप्लाइंग लैपलास LT, ओके, सो L ऑफ del 2u del t2 this is equal to L of del 2u del x2, ठीक है। सो LU del t of del t2 means s square u bar minus s u x0 minus ut x0 and this is equal to L of this means this term means simple d2u bar dx2, ठीक है। so this is imply this is equal to, यहाँ पर लिखते हैं d2u bar my dx2 minus s square u bar this is equal to minus s u x0 minus ut x0, ओके। सो u x0 का वैल्यू क्या है, u x0 का वैल्यू है sin x, ठीक है। देखो यहाँ से
साइन एक्स गिवन है एंड यू टी एक्स जीरो का जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है। तो माइनस एस इंटू साइन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो नाउ सिंपली यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सिंपल जो होगा यू बार एक्स एस दिस इज इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू -1 माइनस एस साइन एक्स, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ऑफ -1 -1 बाई डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू एस साइन एक्स, ठीक है। So this is implies 1 by minus s square common and 1 minus d square by s square of -1 minus 1 by, देखो s तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ x के ऊपर होगा ये अप्लाई। तो s साइन x बाई, देखो d स्क्वायर मीन्स माइनस ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एंड a सिंपली क्या होगा, ये एक्सपेंशन होगा देन अप्लाई होगा तो सिंपल -1 ही बाहर आएगा, ठीक है। तो -1 बाई एस स्क्वायर प्लस एस साइन एक्स बाई एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यू एक्स बार एक्स का जो वैल्यू आया, सॉरी यू बार एक्स एक्स इसका जो वैल्यू आया ये, ठीक है। नाउ यू अप्लाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अप्लाइंग इनवर्स लैप्लास, क्योंकि आप इनवर्स अप्लाई करना होगा तो ये इनवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, यू एक्स टी बन जाएगा, टी के ऊपर अप्लाई किया था लैप्लास। तो दिस इम्प्लाइज लैप्लास इनवर्स माइनस बार आ जाएगा इंटू 1 बाई एस स्क्वायर प्लस लैप्लास इनवर्स, देखो साइन के भी ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा, एक्स के ऊपर टी के ऊपर अप्लाई किया था तो साइन एक्स भी बाहर आ जाएगा इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ, क्योंकि इसका लिनियरिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो लैप्लास इनवर्स इसका क्या वैल्यू आएगा, जस्ट अ मिनट, इसका जो वैल्यू आएगा, अच्छा एक चीज राइट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर माइनस एस स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई ए नहीं बनेगा। तो 1 बाई एस स्क्वायर जो इनवर्स लैप्लास होता है वो क्या है, टी होता है सिंपल, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला रहता है, देखो लैप्लास इनवर्स ऑफ टी टू द पावर एन का क्या फॉर्मूला रहता है, गामा एन प्लस 1 बाई एस टू द पावर एन प्लस 1, एंड इसका इनवर्स लेंगे तो क्या आएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस टू द पावर एन प्लस 1, इसका जो इनवर्स होगा 1 बाई टी टू द पावर एन इंटू गामा एन प्लस 1, ठीक है, ये इसका इनवर्स होता है। तो देखो टी आएगा सिंपल प्लस साइन एक्स इंटू ये किसका फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है, तो कॉस टी आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू पाई एंड पाई बाई 2, सो पुट कर दो। सो दिस इम्प्लाइज यू पाई एंड फर्स्ट पाई बाई 2, देखो यहाँ पे मैं आर्बिट्ररी मेथड से सॉल्व किया, यहाँ पे आप मतलब जो जो दो सॉल्यूशन है वो ए बी क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक के लैप्लास अप्लाई कर सकते हो और एक डी एल एम्बर्ट सोल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर रैंडमली सॉल्व किया, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। दिस इज इम्प्लाइज टी मीन्स पाई बाई 2 प्लस साइन एक्स मीन्स साइन पाई इंटू कॉस ऑफ टी मीन्स पाई बाई 2, सो दिस इम्प्लाइज सिंपल पाई बाई 2, ओके, दिस टर्म्स इज 0, so the answer is here pi by 2, okay, so option A is correct here. Now go to the next question, question number 75, okay. Question number 75 is consider the wave equation del t del t2 is equal to 4 del t del x2 where u x 0 to equal to u pi t equal to 0 and this is the boundary condition बोलते हैं इसको BC and these two are the initial conditions IC, ठीक है। so at t equal to 0 यू एक्स जीरो इक्वल टू साइन एक्स, देन यू पाई बाई टू का वैल्यू क्या आएगा, तो जो गिवन है यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो मतलब क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, यू टी टी दिस इक्वल टू 4 यू एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे फिर से साइन एक्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पर डी एल एम्बर्ट सोल्यूशन से कर दो क्योंकि ये सिंपल है,
जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पर भी साइन एक्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका क्या आएगा, यहाँ पर भी अप्लाई कर दो लैप्लास, ठीक है। तो एल ऑफ क्या आएगा, यू टी टी दिस इज इक्वल टू एल ऑफ 4 u x x, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एल अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर यू बार माइनस यू एस यू एक्स जीरो माइनस यू टी एक्स जीरो दिस इज इक्वल टू 4 × d2 u बार एंड डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एस स्क्वायर यू बार माइनस एस यू एक्स जीरो का वैल्यू क्या है, साइन एक्स एंड डेल टी का मतलब ये टर्म तो यहाँ पर वेनिश हो जाएगा, माइनस एस इंटू साइन एक्स दिस इज इक्वल टू 4 × d2 u बार एंड डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 4 d2 u बार डी एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर यू बार दिस इज इक्वल टू माइनस एस इंटू साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर भी फंक्शन सेम है, तो इसका जो आएगा यू बार एक्स एस दिस इज इक्वल टू 1/4d² माइनस एस स्क्वायर इंटू ऑपरेटिंग ऑन एस साइन एक्स, ठीक है। एंड डी स्टैंड्स पर तो क्या होगा, डी डी एक्स डी टू डी एक्स टू, यहाँ पर होता है डी डी एक्स, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज माइनस एस साइन एक्स बाई 4 इंटू माइनस तो होगा ही 4 इंटू जो होगा यहाँ पर 1² होगा, 1² माइनस 1² माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो एस साइन एक्स बाई 4 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इनवर्स लैप्लास अप्लाई करेंगे, इनवर्स लैप्लास, देखो लैप्लास से कितना इजी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स लैप्लास अप्लाई करोगे तो यू एक्स टी दिस इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ एस बाई एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन एक्स आ जाएगा, साइन के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा तो साइन एक्स बाहर आ जाएगा। एंड इस ये किसका लैप्लास इनवर्स होता है, ये होता है कॉस का, ठीक है। कॉस ऑफ 2t होगा यहाँ पे, क्योंकि लैप्लास ऑफ कॉस 80 ये जो होता है ये होता है एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए का वैल्यू 2 है ना, हो यहाँ पर कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, π/2 ठीक है। तो अप्लाई कर दो, सो ई यू इंटू π/2 दिस इम्प्लाइज साइन π/2 इंटू कॉस 2π/2 मीन्स यहाँ पर कॉस पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 एंड इसका वैल्यू -1, तो -1 यहाँ पर आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। देखो कितना इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब लैप्लास से तो देखो लैप्लास -1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, ओके। ये भी एक अच्छा खासा प्रॉब्लम है, यहाँ पर सिंपल अप्लाई करेंगे, देखो ut00 है मतलब यहाँ पर डी एलम्बर्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं रैंडमली 2 मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है इक्वेशन utt दिस इज इक्वल टू ux(x), ये भी बहुत सिंपल है। एंड ux0 इक्वल टू मतलब ux0 दिस इक्वल टू f(x), इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है x इंटू 1 - x, ओके। सो अप्लाइंग the D'Alembert solution this is equal to 1/2 into f of x plus c का वैल्यू क्या है 1, तो ct होगा, c मीन्स 1 प्लस f of x माइनस t होगा, ठीक है। एंड x का वैल्यू है ये वाला, तो सिंपली यहाँ पर पुट कर दो 1/2, बाकी तो सब टर्म 0 है, ठीक है। g का वैल्यू भी 0 है एंड नॉन ए होमोजेनियस टर्म है, तो x प्लस टी मीन्स यहाँ पर क्या होगा x प्लस टी इंटू 1 माइनस एक्स माइनस टी, यहाँ पर पुट करेंगे x प्लस टी का, x की जगह x प्लस टी, ओके, प्लस x माइनस टी इंटू क्या होगा x माइनस टी इंटू 1 माइनस एक्स प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो सिंपल 1/2 इंटू एक्स प्लस टी से मल्टीप्लाई, तो x प्लस टी एक आएगा एंड माइनस ऑफ x माइनस एक्स माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों टर्म तो क्या आएगा माइनस ऑफ x प्लस टी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस देखो यहाँ से x माइनस टी एक टर्म आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, एंड देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ x माइनस टी का होल स्क्वायर टर्म आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू देखो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस टी माइनस ऑफ, देखो इस दोनों टर्म को एक साथ लिखते हैं, x प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस टी, ठीक है।
तो प्लस टी माइनस टी हो गया, तो 1/2 इंटू 2x माइनस, सॉरी 2x माइनस, तो क्या आएगा, ये आएगा ये जो फॉर्मूला है क्या होता है, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है सिंपली। तो नाउ यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, 1/2 1/4, तो ये आ जाएगा u 1/2 एंड 1/4 का वैल्यू क्या आएगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 1/2 माइनस क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 1/4 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 1/16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/8, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू सिंपल कैलकुलेशन 1/2 इंटू यहाँ पर 8 एलसीएम होगा एंड क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 1, सो 5 1/2 इंटू 3/8, मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/16, ठीक है, किया जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्लियरली करेक्ट है, ठीक है। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, ओके। क्वेश्चन नंबर 77 जो है, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट u(xt) ऑफ द infinitely long elastic string is governed by the initial value problem this, अगर x का रेंज ये है t ग्रेटर देन 0, मतलब t है 0 इन्फिनिटी 1, ठीक है। तो u(x0) का वैल्यू है -x एंड देन डेल u डेल t का वैल्यू है 0, देन वैल्यू ऑफ xt क्या है। देखो जो वेव इक्वेशन के केस है वो दो ही अप्लाई कर सकते हैं सॉल्यूशन के मेथड, ठीक है। और जो जनरल मतलब मेथड है समेशन मार्क का, वो मैं नेक्स्ट दिन करूँगा, वो भी एक फॉर्मूला होता है, वो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। मतलब ये जो फॉर्मूला है लैप्लास एंड डीएलएम्बर्ट, इस दोनों प्रॉब्लम से मतलब फॉर्मूला से आप लोगों का जो वेव इक्वेशन एंड हीट इक्वेशन का मतलब 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा CSIR नेट का, ठीक है। CSIR नेट एंड गेट का भी मतलब 95% प्रॉब्लम इस दोनों फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अप्लाई करो लैप्लास अप्लाई करने से, ठीक है। तो देखो मैं तो यहाँ पर दोनों फॉर्मूला ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो गिवन है u(tt) दिस इक्वल टू 4u(x)x, ठीक है, एंड u(x0) इक्वल टू क्या है -x गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल डीएलएम्बर्ट अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, सिंपल फंक्शन जितना सिंपल है डीएलएम्बर्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखो u(xt) एंड c का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, c स्क्वायर मीन्स 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू f ऑफ x प्लस 2t प्लस f ऑफ x माइनस 2t, इसका वैल्यू है fx, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू मीन्स -x माइनस 2t होगा, क्योंकि यहाँ पर -x एंड ये होगा -x प्लस 2t, ठीक है। तो 2t कैंसिल हो गया, हाफ इंटू -2x, इस इम्प्लाइज -x इसका वैल्यू। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, एट 2 x इक्वल टू 2 t इक्वल टू 2, मतलब u22 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो u22 दिस इक्वल टू सिंपली -2 आंसर हो गया, तो इसका आंसर हो गया -2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, ओके। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, देखो डेली, ये भी एक वेव इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे, यहाँ पर भी डीएलएम्बर्ट अप्लाई कर दो, सिंपल डीएलएम्बर्ट अप्लाई कर दो, ठीक है। 78 का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर सी का वैल्यू क्या है 1 है, मतलब ठीक है, u(tt) इक्वल टू c स्क्वायर u(x)x के कंपेयर करो तो c का वैल्यू 1 आ जाएगा। देखो u(xt) इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू f ऑफ x प्लस ct एंड fx मीन्स ये पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड ये लेते हैं हम लोग gx, ठीक है। तो fx मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स f ऑफ x प्लस t प्लस f ऑफ x माइनस t, ठीक है। तो हाफ ऑफ x प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी तरह होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा यहाँ पे 2 ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। 2 कैंसिल, तो क्या कैलकुलेट करना है u01, तो u01 का वैल्यू क्या आएगा, सिंपल कर दो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 सिंपल, तो यहाँ पर ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं, 79, ठीक है। ये देखो एक थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, क्या है, लेट u(xt) दिस इज इक्वल टू e टू द पावर i ओमेगा x इंटू vt विद v0 इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका वैल्यू जो है ये ut एंड ux ये पुट करके यहाँ पर रख देंगे,
देन देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, यू एक्स टी दिस इक्वल टू टू द पावर आई ओमेगा एक्स इंटू वी टी, एंड क्या गिवन है, वी जीरो इक्वल टू 1 गिवन है, एंड यू टी इक्वल टू इक्वेशन क्या गिवन है, यू एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से कैलकुलेट करो, यू टी दिस इक्वल टू, ये तो एक्स का फंक्शन है एंड ये सिर्फ v का फंक्शन है, मतलब t का फंक्शन है। ये क्या है, e टू द पावर आई ओमेगा एक्स एज इट इज एंड वी टी इंटू टी होगा, v का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, यू एक्स 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 का क्या आएगा, देखो ये तो t का फंक्शन है, सिर्फ x का फंक्शन नहीं है, यानी ये सिर्फ मतलब x का फंक्शन है। तो आई ओमेगा 3 बार आएगा, 3 बार डेरिवेटिव होगा, तो इंटू ई टू द पावर आई ओमेगा एक्स इंटू वी टी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आई क्यू आएगा, आई क्यू मीन्स क्या है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मीन्स -1, तो माइनस आई इंटू ओमेगा क्यू ई टू द पावर आयोटा ओमेगा एक्स इंटू वी टी। नाउ ये इस दो वैल्यू को यहाँ पर रख दो, जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन यहाँ पर, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, तो यू टी मीन्स क्या है, ई टू द पावर आई ओमेगा एक्स इंटू वी टी टी इज इक्वल टू यू एक्स 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 मीन्स माइनस आई ओमेगा क्यू टू द पावर आई ओमेगा एक्स इंटू वी टी, ठीक है। तो देखो ई टू द पावर आई ओमेगा एक्स बोथ साइड से कैंसिल हो गया, वी टी मीन्स क्या है, डी वी डी टी लिख सकते हैं एक इसको, इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा क्यू इंटू वी टी। तो दिस इम्प्लाइज डी वी बाई सब डी वी बाई वी को यहाँ पर लिख देंगे वी टी दिस इक्वल टू माइनस आई ओमेगा क्यू इंटू डी टी, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो सिर्फ यहाँ से, तो क्या आएगा, ये आएगा लॉग ऑफ वी माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लॉग सी दिस इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा क्यू इंटू टी। तो ये क्या आएगा, वी बाई सी दिस इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा क्यूब इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, देखो v इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा क्यूब इंटू टी। नाउ अप्लाइंग वी जीरो दिस इक्वल टू 1, ये गिवन था, तो वी जीरो इक्वल टू 1 दिस इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर 0 आएगा, दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब v का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा क्यूब इंटू टी, ठीक है। नाउ क्या निकलना है यहाँ पर, यू एक्स टी, मतलब यहाँ से वी टी का वैल्यू पुट कर दो, तो यू एक्स टी इक्वल टू क्या आएगा, यू एक्स टी इज इक्वल टू वी इंटू ई टू द पावर क्या था, आई ओमेगा एक्स, ठीक है। तो ई टू द पावर आई ओमेगा एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा क्यू इंटू टी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर आई इंटू ओमेगा कॉमन लो, ये आएगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर टी भी तो आएगा स्क्वायर टी, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन है, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, तो ऑप्शन ए सीधा सीधा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 says that the partial differential equation del u del t is equal to del 2u del x2 plus u can be transformed into this। सो फास्ट यहाँ पे v को एक एक करके लो एंड यहाँ पर पुट करके देख लो, ये इसका तो यही आंसर आएगा। फिलहाल देख लो क्या है, तो v इक्वल टू माइनस टी इंटू यू, ठीक है। u मीन्स फंक्शन ऑफ यू एक्स टी, ठीक है। तो देखो v एक्स का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेट करना है, इसको लिखेंगे इस पर, ठीक है। वी टी कैलकुलेट करना है एंड वी एक्स एक्स कैलकुलेट करना है, तो वी एक्स एक्स का क्या आएगा, देखो ये तो टी का फंक्शन है, तो ई टू द पावर माइनस टी इंटू यू एक्स एक्स आ जाएगा, एंड वी टी का क्या होगा, क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी इंटू यू टी, ये टी के रेस्पेक्ट में ये हुआ, देन ये हुआ, तो माइनस ई टू द पावर माइनस टी इंटू यू, तो इसको यहाँ पर रख दो, क्या आ जाएगा, देखो माइनस ई टू द पावर माइनस टी इंटू यू टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी इंटू यू दिस इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी इंटू यू एक्स एक्स, ठीक है। ई टू द पावर माइनस टी तो कैंसिल हो गया बोथ साइड, तो यू टी माइनस यू दिस इक्वल टू यू एक्स एक्स, ठीक है। तो देखो यू टी दिस इक्वल टू यू एक्स एक्स प्लस यू, तो देखो इसको पुट किया तो देखो जो इक्वेशन बोला था ये इक्वेशन बैक आके आ गया, तो यही इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके। So if you like the content, then please give a like to this video, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you friends. See you again in the next video. Thank you.